اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بات جو ہے وہ گزشتہ درس میں اس چیز میں چل رہی تھی کہ ہم مرج تقلید کی شرائط بیان کر رہے تھے۔ ہم جو ہے وہ 7 شرائط آپ کے سامنے مرج تقلید کی بیان کر چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے 8ویں شرط جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ 8ویں شرط جو ہے وہ مرج تقلید میں یہ ہے کہ مرج تقلید عادل ہو۔ یہاں پر عدالت سے کیا مراد ہے؟ عدالت کی کیا ڈیفینیشن ہے فقہ اہل بیت میں؟ عدالت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک خوف ہو، ایک خوف کی کیفیت ہے، انسان کے اندر ایک خوف راسخ ہے، جس خوف کی وجہ سے انسان شریعت مقدسہ کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ یعنی انسان خوف خدا رکھتا ہے، اس خوف خدا کی وجہ سے وہ شریعت مقدسہ کے اوپر عمل پیرا ہے استقامت کے ساتھ، لیفٹ اور رائٹ کوئی انحراف نہیں ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے، محرمات سے اجتناب کرتا ہے۔ تو جو شخصیت واجبات پر عمل کرتی ہے اور حرام کاموں سے اجتناب کرتی ہے، خوف خدا رکھتی ہے اور شریعت مقدسہ کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہے، کوئی انحراف نہیں ہے لیفٹ اینڈ رائٹ میں، تو یہ شخصیت جو ہے وہ عادل کہلاتی ہے۔ لہذا اگر ایک خوف راسخ ہے انسان کے اندر اور اس خوف کی وجہ سے وہ استقامت کے ساتھ شریعت مقدسہ کے اوپر عمل پیرا ہے اور کوئی انحراف نہیں ہے، کبھی بھی واجبات میں سے کسی واجب کو ترک نہیں کیا اور کسی حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، تو یہ شخصیت عادل کہلاتی ہے۔ اور مرج تقلید کے لیے جو ہے وہ عادل ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے، کوئی شخصیت واجب ترک کر دے یا کسی حرام کا ارتکاب کر لے تو اس کی عدالت چلی جائے گی، تو اس صورت میں پھر کیا حکم ہے؟ تو کیا وہ پوری زندگی عادل نہیں رہیں گے؟ کہ اگر ایک شخص سے جو ہے وہ واجب ترک ہو جاتا ہے یا حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے عادل نہیں رہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے واجب ترک ہو گیا ہے یا حرام کا ارتکاب ہو گیا ہے تو اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، توبہ حقیقی، تو یہ عدالت دوبارہ لوٹ آئے گی۔ جیسے ہی ایک شخصیت نے واجب ترک کیا یا کسی مومن سے حرام کا ارتکاب ہوا تو وہ عادل نہیں رہا، فاسق ہو گیا ہے۔ فار ایگزامپل ایک شخص نے صبح کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی ہے تو یہ فاسق ہو گیا ہے، یہ عادل نہیں رہا، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک شخص نے حرام کا ارتکاب کیا، غیبت کی ہے، تو وہ عادل نہیں رہا، فاسق ہو گیا ہے۔ ابھی فاسق سے دوبارہ عادل کیسے بنے گا؟ جب توبہ کرے گا، توبہ حقیقی جب کرے گا۔ توبہ حقیقی کیا ہے؟ جو گناہ کیا ہے اس کے اوپر حقیقی طور پر نادم ہو، ندامت ہو کہ جو کچھ مجھ سے صادر ہوا ہے میں اس پر نادم ہوں، پشیمان ہوں، اور یہ ندامت حقیقتاً ہو۔ اگر کسی کا مال غصب کیا ہے تو وہ واپس کرے،
यह नदामत हकीकी है। तो लिहाजा अगर किसी के हकूक माली गसब किए हैं तो वो वापस करें, और अगर हकूकुल्लाह की जो है वो मुखालिफत हुई है तो अगर उसकी कज़ा है तो कज़ा करे। यह है नदामत हकीकी कि इंसान गुज़िश्ता अपने आमाल के ऊपर नादिम हो। और दूसरा उन्सुर जो तौबा का है, पहला उन्सुर यह है कि नादिम हो गुज़िश्ता अमाल पर, और नदामत हकीकी हो, और दूसरा उन्सुर यह है तौबा में कि आइंदा के लिए अल्लाह ताला से हकीकी तौर पर वाद करे कि आइंदा यह अमल मुझसे सादिर नहीं होगा। तो यूं अगर वो तौबा हकीकी करता है तो पहले जब उससे गुनाह सरजद हुआ था तो वो फासिक हो गया था, अभी तौबा हकीकी से दोबारा अदालत लौट आएगी। तो लिहाजा अगर एक शख्स अदालत के वादी से निकलकर फिस्क की वादी में, फासिक की वादी में चला जाता है तो वो दोबारा फासिक की वादी से अदालत की तरफ आ सकता है, अदालत की वादी की तरफ, लेकिन तौबा हकीकी के जरिए। तो यह है अदालत और अदालत की डेफिनेशन, कैसे एक इंसान फासिक होता है और कैसे फिर अदालत की तरफ दोबारा लौट आता है। लिहाजा 8वीं शर्त यह है मर्जे तकलीद में कि वो आदिल हों। अच्छा, अभी सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले, हमें कैसे मारिफत हो कि फलां शख्सियत आदिल है या फलां शख्सियत आदिल नहीं है? हमारे लिए कैसे साबित हो कि फलां शख्सियत आदिल है या फलां शख्सियत आदिल नहीं है? तो इसके जो है वो 4 तरीके जो है वो बयान किए गए हैं कि किसी शख्सियत की अदालत को साबित करने के लिए। पहला तरीका यह है कि मुझे वुजदानी तौर पर यकीन है कि यह शख्सियत आदिल है, मुझे जाती तौर पर यकीन है कि यह शख्सियत आदिल है, मैं इतने अरसे से एक शख्सियत के साथ रह रहा हूं, मुझे जाती तौर पर यकीन है, मैंने कभी उनकी जिंदगी में इनहिराफ नहीं देखा, हमेशा वाजिबात पर अमल करते हैं, हमेशा मुहर्रमात से इज्तिनाब करते हैं, मुझे जाती तौर पर यकीन है कि यह शख्सियत आदिल है, मुझे इल्म है, यकीन है, इल्म और यकीन हुज्जत है, लिहाजा मेरे लिए साबित हो जाएगा, मेरे लिए इल्म है, मुझे यकीन है कि यह शख्सियत आदिल है। दूसरा यह है कि उकलाई असबाब और मनाशे से इत्मीनान हासिल हो, मैंने खुद आजमाया है और उस आजमाने के नतीजे में, आजमाइश के नतीजे में मेरे लिए साबित हुआ है कि यह शख्सियत आदिल है। फर्ज करें मैंने इस शख्सियत के साथ सफर किया है, इमाम अलैहिस्सलाम से रिवायात में है, मरवी है कि अगर आपने किसी शख्सियत को जांचना हो कि यह शख्सियत कैसी है तो उसके साथ सफर करें। सफर के मीनिंग ही अरेबिक में सफर कहते हैं, यानी नकाब हटाना, पर्दा हटाना। सफर में जो है वो इंसान का हकीकी इंसान आपको पता चल जाता है, मालूम हो जाता है। आप सफर में देखें कि क्या आपके हकूक का ख्याल रखता है या नहीं रखता। तो सफर का मतलब ही, मीनिंग ही अरेबिक में सफर के मीनिंग ये है कि चेहरे से नकाब हटाना। तो जब आप सफर करेंगे तो उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आप किसी शख्स को सफर में आजमाते हैं कि वो कैसा है, क्या हकूकुल इबाद का ख्याल रखता है या नहीं, हकूकुल्लाह का ख्याल रखता है या नहीं, इस आजमाने में, इस सफर के एक्सपीरियंस में आपके लिए वाज़ेह होता है कि नहीं ये शख्सियत आदिल है और आपको इत्मीनान हो जाता है, तो उनकी अदालत साबित हो जाएगी। इसी तरह किसी और तरीके से आप आजमाते हैं कि यह शख्सियत आदिल है या आदिल नहीं है, तो फिर भी आपको इत्मीनान हो गया
अगर आपको इत्मीनान हासिल हो जाता है तो इत्मीनान भी हुज्जत है, लिहाजा आपके लिए साबित हो जाएगा कि यह शख्सियत आदिल है। तीसरा तरीका हमारे पास यह है कि दो आदिल अफराद गवाही दें कि यह शख्सियत आदिल है, जिसको हम फिक्र की इस्तिलाह में बय्यना कहते हैं। यानी दो आदिल गवाही देते हैं कि फलां शख्सियत आदिल है, तो इस गवाही के जरिए हमारे लिए साबित हो जाएगा कि फलां शख्सियत आदिल है। या बज़ाहिर अच्छा हो, यानी दूसरों के साथ माशरत, उसकी माशरे में उसका बैठना उठना अच्छा है, उसका दीनी सलूक अच्छा है, तो इससे साबित हुआ कि उसका जाहिर अच्छा है। तो इस जाहिर से जो है हमने हुक्म लगाया कि वो आदिल है, हमेशा जो है वो वाजिबात पर अमल करता है, हराम से इज्तनाब करता है, और यही उसकी शोहरत है माशरे में। तो इससे हमारे लिए साबित हुआ कि यह शख्सियत आदिल है। तो ये चार तरीके हैं कि जिससे यह साबित होता है कि एक शख्सियत आदिल है। अब हम जो है अपनी असले बात की तरफ लौटते हैं कि हम आपके सामने बयान कर रहे थे मर्जे तकलीद की शराइत। मर्जे तकलीद के लिए जो है वो आदिल होना शर्त है, और अदालत के क्या मीनिंग है वो हमने आपके सामने बयान किए। अगर एक शख्स की अदालत खत्म हो जाती है और वो फासिक हो जाता है, दोबारा उसने कैसे अदालत उसकी लौटेगी वो भी हमने बयान किया कि तौबा हकीकी जब करेंगे। एक शख्सियत की अदालत कैसे साबित होती है, ये हमने चार तरीके आपके सामने बयान किए। देखिए, ये अदालत की जो बात है ये फकत मर्जे तकलीद में अदालत शर्त नहीं है, इमाम जमात के लिए भी आदिल होना जरूरी है। हम ऐसी शख्सियत के पीछे नमाज पढ़ेंगे जो आदिल हो और हमें कन्फर्म हो कि यह शख्सियत आदिल है, वहां पर भी यह बात आएगी और वहां पर फिर हम दोबारा यह बात नहीं करेंगे। ना हम अदालत की डेफिनेशन भी आपके सामने बयान कर दी, और एक शख्सियत की जो है वो अदालत अगर खत्म हो जाए तो कैसे दोबारा अदालत साबित होती है, और जो है वो अदालत कैसे साबित होती है, उसके चार तरीके भी हमने आपके सामने बयान कर दिए। नावी शर्त जो है वो मर्जे तकलीद में यह है कि मर्जे तकलीद जिंदा हों, लिहाजा इब्तिदाई तौर पर मैयत की तकलीद जायज नहीं है। यानी आप अभी अगर एक बच्चा बालिग हुआ है और वो ऐसी शख्सियत की तकलीद करना चाहते हैं कि जिनकी ऑलरेडी पहले से डेथ हो चुकी है, तो इसको हम फ़िक़्ह इमामिया की इस्तिलाह में तकलीद इब्तिदाई लिल मैयत कहते हैं, और फ़िक़्ह इमामिया में तकलीद इब्तिदाई लिल मैयत के एक शख्सियत की पहले से डेथ हो चुकी है और आप अभी उनकी तकलीद करना चाहते हैं, तो ये तकलीद जो है वो जायज नहीं है। लेकिन एक और तकलीद की किस्म है जिसे तकलीद बकाई लिल मैयत कहा जाता है। यानी आप एक शख्सियत की उनकी जिंदगी में, उनकी हयात में आप तकलीद करते थे और फिर उस शख्सियत की डेथ हो गई, तो क्या आप उनकी तकलीद पर बाकी रह सकते हैं या बाकी नहीं रह सकते? इंशाअल्लाह हम आगे चलकर जहां पर तकलीद की अक़साम बयान करेंगे वहां पर चंद शराइत जिक्र करेंगे। उन शराइत की मौजूदगी में आप जो है वो तकलीदिल बकाई लिल मैयत कि आप एक शख्सियत की उनकी जिंदगी में तकलीद करते थे और फिर उनकी डेथ हो गई, तो क्या उनकी तकलीद पर बाकी रह सकते हैं या नहीं? चंद शराइत के साथ आप उनकी तकलीद पर बाकी रह सकते हैं। अलबत्ता जो है वो तकलीद इब्तिदाई लिल मैयत जो है वो जायज नहीं है। लिहाजा अभी अगर आप एक ऐसी शख्सियत की तकलीद करना चाहते हैं कि जिनकी डेथ हो चुकी है, तो जो है उनकी तकलीद नहीं की जा सकती। लिहाजा मर्जे तकलीद के लिए जरूरी है कि वो जिंदा हों, बाहयात हों।
इसके बाद जो है वो 10वीं शर्त ये है कि मर्जे तकलीद के लिए ज़रूरी है कि वो आलम हो। आलम के क्या मीनिंग है? देखिए, एक होता है आलिम और एक होता है आलम। जैसे हम जो है वो कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, आलिम और आलम। देखिए, आलम के क्या मीनिंग है? वो शख्सियत के जो फ़क़ाहत में ज़्यादा माहिर हों, यानी अहकाम शरइया को कुरान और सुन्नत से अख्ज़ करने में ज़्यादा दकीक हों, ज़्यादा माहिर हों, उस शख्सियत को जो है वो आलम कहा जाता है। देखें, जो यहाँ पर जो है वो एक नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि बाज़ दफ़ा जो है यहाँ पे इश्तिबाह किया जाता है कि फ़लाँ शख्सियत जो है वो इतनी किताबों की जो है वो मुसन्निफ़ है और इतनी किताबें उन्होंने तालीफ़ की हैं, तो क्या कसरत तसनीफ़ और कसरत तालीफ़ इस बात पे दलालत करती है कि वो शख्सियत आलम है? वो इतनी किताबों के मुसन्निफ़ हैं, इतने वालियम उन्होंने लिखे हैं, तो क्या ये इस बात पर दलील है कि वो बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, वो आलम हैं फ़िक़्ह में? तो इसका जवाब ये है कि कसरत तानीफ़ के ज़्यादा किताबों का मुअल्लिफ़ होना, ज़्यादा किताबों का मुसन्निफ़ होना, ये एक अलहदा वादी है, और फ़क़ाहत और बहुत बड़ा फ़क़ीह होना ये एक अलहदा वादी है। इनमें जो है वो कोई इस बात पे दलालत, कसरत तसनीफ़ जो है, ज़्यादा किताबों का मुसन्निफ़ होना, ये इस बात पे दलालत नहीं करता कि फ़लाँ जो है उन्होंने इतनी ज़्यादा किताबें लिखी हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, वो अफ़क़ाह हैं, वो आलम हैं। ये इसके ऊपर दलालत नहीं करता। इसका जो है वो फ़क़ाहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। किताबों का मुसन्निफ़ होना, किताबें तसनीफ़ करना, किताबों का मुअल्लिफ़ होना, ये जो है इसका फ़क़ाहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मुमकिन है कि एक शख्सियत बहुत बड़ी फ़क़ीह हो, अफ़क़ाह हो, आलम हो, और उनकी फ़क़त तौज़ीहुल मसाइल के अलावा, रिसाला अमलिया के अलावा कोई किताब जो है वो ना हो। लिहाजा कसरत तसनीफ़, कसरत तालीफ़ जो है वो आलम या अफ़क़ाह होने के ऊपर दलालत नहीं करती। तो फिर आप सवाल करेंगे कि जो है वो आलम होना, अफ़क़ाह होना से क्या मुराद है? तो देखें, जो है वो फ़क़ाह जो है वो एक अलहदा वादी है, जैसा कि मैंने आपके सामने जिक्र किया। फ़क़ाहत में यह है कि फ़िक़्ह में आप जो है वो ज़्यादा माहिर हैं, अहकाम शरइया को कुरान और सुन्नत से अख़ज़ करने में आप ज़्यादा दकीक और माहिर हैं। ये आलम और अफ़क़ाह जो है वो मुराद होते हैं। लिहाजा अगर आप देखें, वो शख्स जो है वो फ़क़ाहत में ज़्यादा दकीक होते हैं, वो शख्सियत के जो है वो कवायद और प्रिंसिपल जब बनाए जाते हैं फ़िक़्ह के, तो उनमें दकीक हों, फिर उन कवायद को फ़ुरूआत के ऊपर और जुज़ियात के ऊपर तत्बीक करने में ज़्यादा दकीक हों, और इसी तरह जो है अगर रिवायात में और अदिल्ला में तारुज़ हो जाए तो उनको जम करके नतीजा कैसे निकालना है, इसको हम फ़िक़्ह की इस्तिलाह में फ़िक़्ह इस्तिज़हारी कहते हैं। इन चीज़ों में जो शख्सियत ज़्यादा माहिर हो, यानी कवायद की फ़ुरूआत के ऊपर तत्बीक में और अदिल्ला को जम करके इस्तिज़हार करके उनको जो है वो नतीजा निहाई निकाल कर वो जो है उसमें जो शख्सियत ज़्यादा माहिर है, वो जो है वो आलम और अफ़क़ाह होती है। लिहाजा फ़क़ाहत एक अलहदा वादी है, और कसरत तसनीफ़ और ज़्यादा किताबें लिखना, ज़्यादा किताबों का मुअल्लिफ़ होना, ये एक अलहदा वादी है। हो सकता है कि एक शख्सियत ने जो है वो बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, कसरत तालीफ़ है, कसरत तसनीफ़ है, ये अलहदा वादी है, और फ़क़ीह होना या मुफ़क्किर होना ये एक अलहदा वादी है। इनका आपस में कोई रब्त नहीं है।
لہذا عالم اور افقہ سے مراد وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو قواعد کی جزیات کے اوپر تطبیق میں اور روایات اور ادلہ کو جمع کر کے نتیجہ نکالنے میں جو شخصیت زیادہ ماہر ہے، زیادہ دقیق ہے، وہ افقہ ہے۔ لہذا یہ مراد ہے عالم سے۔ اب ہم جو ہے وہ اپنی اصل بات کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں کہ دیکھیں عالم کی شرط ہے کہ مرجع جو ہے وہ عالم ہو۔ یہ کب شرط ہے کہ مرجع جو ہے وہ عالم ہو؟ یہ اس وقت شرط ہے کہ جب ہمارے سامنے جو ہے فار ایگزامپل دو مجتہد جو ہے وہ موجود ہیں، اگر ان کے جو ہے فتاوی کے درمیان اختلاف ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کون عالم ہے، اس کے فتویٰ کے اوپر جو ہے وہ ہم عمل کریں، کون زیادہ ماہر ہے، کون زیادہ دقیق ہے۔ یہی عقل انسانی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب ہمارے سامنے دو مجتہد موجود ہیں اور ان دونوں کے فتاوی میں اختلاف ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون عالم ہے، کون زیادہ ماہر ہے، کون زیادہ دقیق ہے، اس کے فتوے کو ہم لیں گے اور ان کے فتوے پر عمل کریں گے، اور اسی چیز کا نام جو ہے وہ تقلید ہے۔ لہذا عالم کی شرط تب ہوگی جب جو ہے وہ مجتہدین کے فتاوی میں اختلاف ہو۔ اگر جو ہے فار ایگزامپل ہمارے سامنے دو مجتہد ہیں اور ان کے فتاوی میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ عالم کی شرط نہیں ہے۔ فرض کریں ہمارے سامنے دو طبیب ہیں، دو ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے جو ہے مرض کی تشخیص بھی ایک جیسی کی ہے اور اس کی جو ہے وہ دوائی بھی ایک جیسی لکھ کر دی ہے، تو پھر ہمیں یہ جانچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ ماہر ہے اور کون زیادہ جو ہے وہ عالم ہے۔ لہذا اس صورت میں ہمیں جو ہے وہ عالم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا مرجع تقلید میں عالم کی شرط تب ہوگی جب ہمارے سامنے مجتہدین کے فتاوی میں اختلاف ہو، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کون عالم ہے، کون زیادہ ماہر ہے۔ لہذا اس کی طرف جو ہے ہم عقل انسانی بھی یہ حکم دیتی ہے، بنائے عقلاء اسی چیز کے اوپر قائم ہے کہ ہم اس کی بات پر عمل کریں، اس کے فتوے پر عمل کریں کہ جو زیادہ ماہر ہیں۔ لہذا عالم کی شرط تب ہے جب مجتہدین کے فتاوی میں اختلاف ہو۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے 10 شرائط جو ہے وہ مرجع تقلید کی بیان کی، اور اس سے واضح ہو گیا کہ مجتہد اور ہوتا ہے اور مرجع تقلید جو ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ یہ 10 شرائط اگر پائی جائیں تو کسی شخصیت کی تقلید کی جا سکتی ہے، یعنی وہ مرجع تقلید ہو سکتے ہیں۔ یہ 10 شرائط آپ کے سامنے ہم نے مرجع تقلید کی جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخری سوال یہ ہے کہ عالم ہمیں کیسے پتہ چلے، ہمیں کیسے معلوم ہو، ہمیں کیسے پہچان ہو کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے، یعنی عالم کے پہچاننے کے کیا طریقے ہیں؟ تو وہ وہی 4 طریقے ہیں جو اجتہاد کے ہم نے بیان کیے تھے کہ کیسے ثابت ہو کہ فلاں شخصیت مجتہد ہے یا فلاں شخصیت مجتہد نہیں ہے۔ تو جن 4 طریقوں سے ہم اجتہاد ثابت کرتے تھے، انہی 4 طریقوں سے عالمیت ثابت ہوتی ہے۔ ان میں سے جو ہے وہ پہلا طریقہ یہ تھا کہ ہمیں علم وجدانی ہے کہ مجھے ذاتی طور پر یقین ہے، میں اہل خبرہ میں سے ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ شخصیت زیادہ ماہر ہے، زیادہ دقیق ہے، لہذا یہ عالم ہے۔ یا دوسرا جو ہے وہ طریقہ یہ تھا کہ مجھے اطمینان حاصل ہوا ہے مناشع عقلائیہ سے، یعنی میں نے خود جانچا ہے، آزمایا ہے، تو جس سے میرے لیے ثابت ہوا ہے کہ یہ شخصیت جو ہے وہ زیادہ ماہر ہے۔ یا 2 عادل جو ہیں وہ اہل خبرہ میں سے گواہی دیں اس بات کے اوپر کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ عالم ہے۔ یا ایک سکہ انسان جو ہے جو اہل خبرہ میں سے ہو، جو جھوٹ نہیں بولتا، اور وہ ہو بھی اہل خبرہ میں سے، اور وہ گواہی دیں
کہ فلاں شخصیت عالم ہے، تو انہی 4 طریقوں سے عالمیت ثابت ہوگی، جن 4 طریقوں سے ہم اصل اجتہاد کو جو ہے وہ ثابت کرتے تھے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے آج جو ہے وہ مرجع تقلید کی شرائط آپ کے سامنے بیان کی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔